Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Father, we thank you in the name of Jesus. पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। We thank you for this another opportunity to come together physically to worship you. हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अवसर के लिए जो आपने हमें फिर दिया कि हम एक साथ आकर आपकी आराधना कर सके। Thank you for everyone who's come today. धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जो आज यहाँ आया है। Thank you for the time of praise and worship. स्तुति आराधना के समय के लिए धन्यवाद। We thank you, Lord, that you're moving mightily in this nation. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इस देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप चल रहे हैं। All the 28 states and 8 union territories. जितने भी 28 राष्ट्र है और जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज है सबके लिए धन्यवाद करते हैं। That your mighty wind of the Spirit of God कि परमेश्वर की महान और बलपूर्वक वायु हवा सब जगह बह रही है। Thank you, Holy Spirit, you're moving mightily in this nation. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपका चलन इस देश में बहुत भारी रूप से है। Let's just pray in tongues for India for a moment. कृपया भारत देश के लिए आइए हम भारत देश के लिए थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Santang groshetele manzakadada paro shetele de shatalabaraga palo zele mandangra sokradagra Parlo shetele manta grada da grada. Baru shetele le mandada maso rapagrada. Peru shetele le manzang graso grada. Peru shatala bada sete shatala mandagra. Paru shede de jalamanang grada. Paro shete le zalamantagra, move mightily in this nation. इस देश में आप प्रबल रूप से आप चलन करिए। Move mightily in this nation. इस देश में आप प्रबल रूप से चलन करिए। Move mightily in this nation. इस देश में आप भारी रूप से चलन करिए। Let your purposes prevail in this nation. आपके उद्देश्य इस देश में प्रबल हो। There is no wisdom, no insight that can succeed against the Lord. कोई भी ऐसी बुद्धि या कोई भी ऐसी जानकारियां नहीं है जो परमेश्वर के खिलाफ सफल हो सकती है। Your purposes are prevailing in this nation. आपके उद्देश्य इस देश में प्रबल हो रहे हैं। Every spirit of witchcraft is bound. हर एक जादू टोने की आत्मा बांधी गई है। Every words of witchcraft are nullified in the name of Jesus. जादू टोने के हर एक शब्द यीशु के नाम से गला खराब किए जा रहे हैं। Every plan of the enemy, शैतान की हर एक योजना we nullify it in the name of Jesus. हम उसे यीशु के नाम से धिक्कारते हैं। Your purposes will prevail for this nation. आपके उद्देश्य इस देश के लिए प्रबल होंगे। All the 28 states and 8 union territories. जितने भी 28 राष्ट्र है और जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज है सब में आपकी योजना प्रबल हो। We thank you for this great nation. हम इस महान देश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Now speak to us through your word. अभी आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें and give us revelation. और आप हमें प्रकाशन दीजिए। Show us things we have never seen. ऐसी चीजें दिखाइए जो हमने पहले कभी ना देखी हो। Take us deeper in your word. आपके वचन में और गहरा लेकर जाइए। Give us deeper revelation. हमें और गहरे प्रकाशनों को दीजिए। We give you all the glory. हम सारी महिमा आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। I want to welcome all of you to church today. मैं आप सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। Today I want to talk about, let's go to the prosperity session. Yeah, again, by the leading of the Spirit, I want to talk to you again about the Father's resources. और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम आज पिता के संसाधन इस विषय पर बात करेंगे। In my spirit it was something else I wanted to teach you, but the Lord directed me again to this.
मेरे आत्मा में कुछ अलग था आपको पढ़ाने के लिए, पर परमेश्वर ने मुझे इस विषय की ओर अगुवाई करी। And maybe we'll postpone what was in my spirit before. और शायद से जो मेरे आत्मा में पहले था, हम उस चीजों को थोड़ा देरी से करेंगे। So the Father's resources, the Father's resources. पिता के संसाधन। Now let's go to the first line. Yeah. Galatians 4:6 says, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. इसलिए तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कर कर पुकारती है, हमारे हृदयों में भेजा है। Now notice, all of us, God Almighty is our Father. हम सभी के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता है। Because the moment you accepted Jesus Christ, God Almighty has become your Abba Father. और जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अब्बा पिता बन गए। Now He is more real to us than our earthly father. और वो हमारे सांसारिक, हमारे पृथ्वी के पिताओं से भी अधिक ज्यादा असली है। In fact, our earthly fathers are only fathers of our flesh, but our heavenly Father, He is the Father of our spirits. और जो हमारे पृथ्वी के माता पिता, हमारे पृथ्वी के पिता जो है, वो हमारे मांस के पिता है, पर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी आत्मा का पिता है। Now look at it again. Because you are sons. तुम जो पुत्र हो, That means all of us who accepted Jesus as our Lord, we are sons. जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, वो सब पुत्र है। So we must move from a slave mentality to a son mentality. तो हमें एक गुलाम की मानसिकता से बढ़कर हमें एक बेटे की मानसिकता पर आना है। In a house, nothing belongs to a slave. In a house, everything belongs to the son. एक घर में कुछ भी चीजें जो है वो गुलामों की नहीं होती, सब चीजें जो है वो पुत्र की होती है। So if it doesn't belong to the sons, if it doesn't belong to the slaves, so all the while slaves try to get something because it doesn't belong to them. अगर कुछ भी गुलामों का नहीं है, तो वो पूरा जीवन भर उसे प्राप्त करने के संघर्ष में करते, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, Because they don't have it. क्योंकि उनके पास नहीं है, It is not theirs. वो उनका नहीं है। So they are always trying to get it because it is not theirs. तो वो पूरा समय यही कोशिश करते कि उसे प्राप्त करे, क्योंकि वो उनका नहीं है। So one of the things is, because you are sons. ये एक चीज उसमें से ये है कि क्योंकि तुम जो पुत्र हो। How beautiful. कितना सुंदर है ये। Because you are sons. क्योंकि तुम जो पुत्र हो, So I'm a son. तो मैं एक पुत्र हूँ। God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Abba, Father. इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कर कर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। Just like all of us have earthly fathers. जैसे हम सबके इस पृथ्वी के पिता है। If you are a believer, all of us are believers here. We have heavenly Father, God Almighty. We call Him Abba. और जो भी विश्वासी, हम सब विश्वासी जो है, हमारे एक स्वर्गीय पिता भी है, और उन्हें हम अब्बा पिता कहते हैं। We must make this practical in our life. और इसे हमें अपने जीवन में जो है वो असली बनाना है। Next slide. अगला स्लाइड। A very interesting topic. Now notice, God directed me to this topic. That means we have to hear this. परमेश्वर ने मुझे इस विषय पर फिर लेकर आए। इसका अर्थ है कि हमें ये विषय सुनना है। Somebody needs to hear it. किसी को तो सुनना है। Like Jesus, every child of God, इसको ध्यान से देखिए, like Jesus, who is the standard son, यीशु की तरह, जो एक हमारा उदाहरण है। yes, like Jesus, every child of God
is supposed to live by the Father's resources. यीशु की तरह जो एक हमारा उदाहरण पुत्र है, उसकी तरह परमेश्वर के हर बच्चे को पिता के संसाधनों के द्वारा जीवन जीना चाहिए। Many times people would think, okay, these are only spiritual things, practically these don't work. तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये सब चीजें तो आत्मिक चीजें हैं, पर ये जीवन में लागू नहीं होती कहीं। No, we must look at the life of Jesus. नहीं, हमें यीशु के जीवन को देखना है। When you look at his life, जब हम उसके जीवन को देखते हैं, he was never in pursuit of resources. वो कभी भी संसाधनों के पीछे नहीं भागते थे। Why? क्यों? Like many people today, their only agenda in life is resources. जैसे कि बहुत सारे लोग जो आज हैं, उनका जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो संसाधनों को प्राप्त करे। But all of us are like Jesus. पर हम सब यीशु की तरह है। It doesn't say pastor is like Jesus. It says every child of God is like Jesus. ये नहीं कहता कि सिर्फ पासबान जो है वो यीशु की तरह है, वो कहता है परमेश्वर के हर एक संतान यीशु की तरह है। That's why we can't focus too much on Hollywood or Bollywood heroes. इसीलिए हम जो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो हैं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, Because Jesus is our standard for life. क्योंकि यीशु मसीह हमारे पूरे जीवन के लिए उदाहरण है। So how did he live? तो उसने कैसा जीवन जिया? How was his life? उसका जीवन कैसा था? He shows me how I should live. उसने मुझे दिखाया कि मुझे कैसा जीना है। So I'm looking at him. तो मैं उसकी ओर देख रहा हूँ। Because maturity is how much of your life is aligned with him. क्योंकि परिपक्वता ये है कि आपका जीवन कितना उसके जीवन के से संरेखित है। Sometimes we have role models who have no value for Jesus. I don't know how they can be our role models. हम कई बार जो है हमारे उदाहरण जो होते हैं, हमारे आदर्श जो होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो यीशु को नहीं मानते, और मैं सोचता हूँ कि हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श कैसे बना सकते हैं। He is our standard for life. वो हमारा पूरे जीवन का उदाहरण है। How did he live? कैसे वो जिया? What were his pursuits? उसके अनुसरण क्या थे? What were his ambitions? उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी? What was his dream? उसके सपने क्या थे? Anyways, like Jesus, every child of God is supposed to live by the Father's resources. यीशु की तरह परमेश्वर के हर बच्चे को पिता के संसाधनों के द्वारा जीवन जीना Now चाहिए। he was a hard worker. अभी वो बहुत मेहनत करने वाले He व्यक्ति was थे। such a hard worker. The disciples were shocked. वो इतना मेहनत करते थे, इतने मेहनती थे कि उनके खुद के चेले चौंक जाते थे। But the purpose of his work was not resources. It was the Father. पर उनके मेहनत का जो उद्देश्य था वो कोई संसाधन नहीं थे, वो पिता थे। इसको ध्यान से सुनिए, this will make prosperity so easy for all of us. ये चीजें हमारे लिए समृद्धि को बहुत आसान बना देंगे। Every child of God, not just pastor, every child of God is supposed, maybe we are not, but we are supposed to live by the Father's resources. परमेश्वर के हर एक बच्चे, सिर्फ पासवानों की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर के हर एक बच्चे को पिता के संसाधनों के अनुसार द्वारा जीवन जीना, हम शायद से नहीं जी रहे, पर हमें उसके द्वारा जीवन जीना चाहिए। It's like one rich father ये मानो ऐसा कि एक धनवान पिता है and billions of his children, believers. और खरबों उनके बच्चे विश्वासी। All of these billion believers, we are using that one father's resources to fulfill our one father's agenda. हम इतने खरबों विश्वासी जो है, हम उस एक धनवान पिता के संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उस एक पिता के योजनाओं को पूरा करें। Think about this, a very rich king. एक बहुत धनवान राजा, Let's say he has 100 children. ऐसा कहेंगे कि उसके 100 बच्चे हैं, And all of them have access to this one rich king's resources. और उन सभी के पास ये जो एक धनवान राजा है उसके संसाधनों तक की एक पहुंच है। Yeah. So let me read it again. मैं फिर से पढ़ता हूं। Like Jesus, every child of God is supposed to live by the Father's resources. यीशु की तरह परमेश्वर के हर एक बच्चे को पिता के संसाधनों के द्वारा जीवन जीना चाहिए। Our heavenly Father has a lot of resources. हमारे स्वर्गीय पिता के पास बहुत सारे संसाधन हैं। He's very rich. बहुत धनवान है। He has a lot of resources. उनके पास बहुत संसाधन है। And like a good father, all of his resources belong to his children. और एक भले पिता के नाते उनके सारे संसाधन उनके बच्चों के हैं। But
and so children must take those resources. और बच्चों को उन संसाधनों को लेना है. For example, Matthew 2:1. उदाहरण See how the Father works. उदाहरण के तौर पर मत्ती 2:1 देखेंगे और उसमें देखेंगे कि पिता कैसे काम करता है. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कोई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे. Now notice Jesus is about to be born and somebody has told these wise men to come and meet Jesus. और यीशु का अभी जन्म होने वाला है और किसी ने तो आके इन ज्योतिषों से कहा कि आपको आकर यीशु को मिलना है. Of course Jesus didn't tell them. हाँ, यीशु ने तो उन्हें नहीं बताया. So who told them? तो उन्होंने किससे बताया? Who is telling them that this child is going to be born, he's going to be the king of the Jews, about the timing, where, who can do it? Only God can do it. किसने उन्हें बताया कि उन ज्योतिषों को कि एक राजा जन्मने वाला है और वो यहूदियों का राजा है, उस समय वो जगह किसने बताया? परमेश्वर ने बताया. Only God can do it. सिर्फ परमेश्वर कर सकता है. But that's how he provides resources for his children. और ऐसे ही वो अपने बच्चों के लिए संसाधनों की उपलब्धि करता है. Next verse. अगला वचन. Saying, now these wise men, they were not three, there were three gifts, but wise men were more than three. और ये जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्योतिष है, वो तीन नहीं थे. उन्होंने तीन भेंटें दी थी पर तीन नहीं थे. They said, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and we have come to worship him. कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं. Wonder who showed them the star. सोचता हूं मैं कभी कभी कि उन्होंने वो तारा उन्हें किसने दिखाया. Because they have seen so many stars. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तारों को देखा. Here is God working for his children. यहाँ परमेश्वर अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है. Here is the father wanting to share his resources with his children. यहाँ परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ अपने संसाधनों को बांटे. Look at how well planned he is. देखिए कितना बहुत सटीक रूप से योजनाओं को बनाता है वो. Look at his timing. उसके समय को देखिए. Look at his planning. उसके योजना को देखिए. See how beautifully he is planning to provide for his son Jesus Christ. देखिए कितना सुंदर तरीके से वो योजना बना रहा है ताकि वो अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए प्रावधान करे. He said, we have seen his star, we have come to worship him. उन्होंने कहा कि हमने उसका तारा देखा और उसे प्रणाम करने आए हैं. The Holy Ghost is leading them. और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है. Verse 3. वचन 3. And when they came, okay, verse 3 we'll skip. Let's go to verse 11 directly. We have gone to verse 11, okay? हमने वचन तीसरा वचन से सीधा हम 11 वचन पे आए हैं. When they came into the house, they saw the young child with Mary, his mother. They fell down, they worshipped him, and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपने अपने येला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई. Jesus never told them to do it. यीशु ने कभी उन्हें बताया नहीं करने के लिए. Here is the Holy Spirit working behind the scenes for a son of God. और पर्दों के पीछे यहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर के पुत्र के लिए. He's working for them. वो उनके लिए काम कर रहा है. Because sons of God live by the resources of their dad. क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र है वो अपने पिता के संसाधनों के अनुसार जीवन जीते हैं. So here are people coming and giving Jesus gold, frankincense and myrrh. और अभी लोग यहाँ पे आके यीशु को सोना, लोबान और गंधरस दे रहे हैं. And it's God who's working behind the scenes. और ये परमेश्वर है जो पर्दों के पीछे काम कर रहा है. He is working behind the scenes for his children, for his sons, and we are also sons. और वो पर्दों के पीछे अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है और हम उसके बच्चे हैं. He has already thought about it.
उसने पहले सोच के रखा है इन चीजों के बारे में, Because Herod is about to kill all the children. क्योंकि जो हेरोदेस है वो अभी सब बच्चों को मारने वाला है, And God is about to send this family to Egypt and they will need the money and God give them gold. और परमेश्वर इस परिवार को मिस्र में भेजने वाला है और उसे जाने के लिए उनको वहां पैसों की जरूरत होगी और परमेश्वर ने उन्हें सोना दिया। Everything is planned. सब कुछ योजना में है, Everything is ready. सब कुछ तैयार है आपके He लिए। has planned your life. उसने आपके पूरे जीवन की योजना बना के रखी है। Look at the timing. समयों को देखिए आप, Because they are coming from the east. क्यों पूर्व से आ रहे हैं, They are coming from the east. वो पूर्व से आ रहे हैं। I was reading about Joseph. मैं यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था The Bible says his brothers were very envious. जलन रख रहे थे. और उसके बाइबल कहते हैं कि उसके जो भाई है वो बहुत जलन से भरे थे, Because Joseph would publicly announce his dream. क्योंकि यूसुफ जो था वो सबके सामने अपने सपने को बताता था। उन्होंने बताया मेरा सपना ये है कि तुम सब झुक रहे हो मेरे सामने। अभी बड़े भाई थोड़ी सुन के लेंगे। He will say publicly सब झुक रहे हैं मेरे सामने। और वो सबके सामने कहते थे कि सब मेरे सामने झुक रहे हैं। So बाकी 10 भाई बोले इसको झुकाते हैं। So they said सब झुक रहे हैं मेरे सामने। तो उन्होंने कहा कि सब झुक रहे हैं मेरे So they सामने। were very angry. तो बहुत जलन हो गए उनके Very jealous. और बहुत गुस्से में आ गए And so they threw him in a pit. और उसे गड्ढे में डाल दिया। They sold him to Egypt. उन्होंने उसे मिस्र में बेच दिया। But what they didn't know पर वो क्या नहीं जानते थे वो कि ये था उनके जलन में भी उन्होंने उसे मिस्र में भेजा जो परमेश्वर की योजना थी। If somebody is jealous of you, अगर कोई आपसे जलन रखता है it will all work out for good. वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही काम करेगा। उन्होंने जलन में, ध्यान से सुनिए, उन्होंने जलन में उसे उस जगह पर भेजा जो परमेश्वर की योजना थी। Just like they did with Jesus. जैसे जैसे उन्होंने यीशु के साथ किया। The Pharisees were envious फरीसी बहुत जलन रखते थे and they crucified him और उन्होंने उसको क्रूसित कर दिया without knowing that it was God's plan. ये जाने बगैर कि वो परमेश्वर की योजना थी। How beautiful is the word. कितना सुंदर है परमेश्वर का वचन। So it says they opened their treasures. See how the Father is providing for his son. उन्होंने कहा, उन्होंने अपने ये लोगों को खोल दिया और देखिए कि परमेश्वर अपने पुत्र के लिए कैसे प्रावधान कर रहा है। He's providing gold, frankincense and myrrh. वो सोना, लोबान और गंधरस उनके लिए उनका उसका प्रावधान दे रहा है। That means he is thinking about us. इसका अर्थ है कि वो हमारे बारे में सोच रहा है। He will bring in the right people for your life. वो आपके जीवन के लिए सही लोगों को लेकर आएगा। He will open the right opportunities for your life. वो आपके जीवन के लिए सही मौकों को खोलेगा। He will, and look at the timing, because they could have come late, they could have come before, but they came exactly when Jesus was born. पर समय को भी देखिए, वो शायद से थोड़ा देर से आ सकते, थोड़ा सा जल्दी आ सकते थे, पर वो तभी आए जब यीशु का जन्म हुआ। Look at how the Father's resources is working. देखिए पिता के संसाधन कैसे काम कर रहे हैं। When they had come near, they opened their treasures. जब वो उसके पास आए तो अपने ये लोग को खोला। They came near and they opened the treasures. वो पास आए और उसने अपने ये लोग को खोला। All throughout his life, it's like that. और उनके पूरे जीवन भर ऐसा था। So my point to you is what God wants to tell you. तो मेरा मुद्दा ये है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, That your heavenly Father has lot of resources. कि आपके स्वर्गीय पिता के पास बहुत सारे संसाधन हैं। He's not poor. वो गरीब नहीं है, He's extremely wealthy. वो बहुत धनवान है। You cannot exhaust his resources. Our resources will exhaust because it is little we have. आप उसके संसाधनों को खत्म नहीं कर सकते। हमारे सब संसाधन बहुत छोटे हैं, इसलिए कभी भी खत्म हो सकते हैं। So this is a rich father. पर ये धनवान पिता है, He has lot of resources. उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं। He said the silver is mine and the gold is mine. वो कहता है कि सोना मेरा है, चांदी भी मेरा है। And see, he gave him gold. और उसने सोना दिया। So what my point is, whatever your assignment is in life, if you trust him, he will bring the right people, he will bring the opportunities, and he will bring the resources to do what God has called you to do. तो अगर उसने आपको आपके जीवन पे कोई कार्यभार रखा है तो वो सही लोगों को, सही संसाधनों को और सही मौकों को आपके लिए लाएगा ताकि आप उसकी योजना को पूरा करें। It was God's plan that God's son should come. It was not God's son just coming by himself. It was God's plan, and now God is providing his resources for his plan. परमेश्वर
का पुत्र अपने आप से ही नहीं आया, वो परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने उसे सोना, लोबान और गंधरस देकर उसका प्रावधान भी किया। Amen. Amen. So let me give you one key how you tap into the resources. और मैं आपको एक कुंजी दूंगा कि आप पिता के संसाधनों को कैसा उसमें तक पहुंच सकते हैं, How the Father is providing for them कैसा पिता उनके लिए प्रावधान कर रहा है all throughout his life. उनके पूरे जीवन भर। The Father is providing for him. परमेश्वर पिता उनके लिए प्रावधान कर रहा है। One thing I'll tell you, एक बात मैं आपको बताऊंगा, you cannot look up and down at the same time. Either you look up or you look down. आप एक ही समय पर ऊपर नीचे नहीं देख सकते। आप एक तो नीचे देख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर देख सकते हैं। If your eyes are on resources, it is not on God. अगर आपकी आंखें संसाधनों पर है तो आपकी आंखें परमेश्वर पर नहीं। Yeah, you can't look at God and resources. आप परमेश्वर को और संसाधनों को एक साथ नहीं दे सकते। So unless we fix our eyes on God तो जब तक हम अपनी आंखों को परमेश्वर पर ना लगाए and be committed to His agenda, और उसकी योजनाओं के लिए हम प्रतिबद्ध रहे, then the Father takes care of the resources. फिर पिता संसाधनों की देखभाल करता है। But if we say पर अगर हम कहें that we don't have time for God's agenda, we are busy pursuing resources. कि हमारे पास परमेश्वर की योजनाओं के लिए समय नहीं है, हम संसाधनों के पीछे भागने में लगे हैं, It's not new. तो ये नया नहीं है। Millions of people have made their life about resources and they have gone. खरबों अरबों लोगों ने अपने जीवन को संसाधनों के बारे में बनाया और वो चले गए, That life is not worth it. और वो जो जीवन है वो इसके मूल्य नहीं है। It's a tough life. कठिन जीवन है वो It's a life filled with lot of thorns. वो ऐसा कांटों से भरा जीवन है वो। But we have a loving Father. पर हमारा एक प्रेमी पिता है, He has lot of resources. उसके पास बहुत सारे संसाधन है He wants to share it with you. और वो आपके साथ बांटना चाहता है। Amen. Amen. So now look at this one way of tapping into the resources. तो एक तरीका कि आप परमेश्वर के प्रावधानों में प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। Right. Enjoying, ये एक तरीका है। Enjoying the Father's resources depends greatly on your mindset. पिता के संसाधनों का आनंद लेना काफी हद तक आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। There is one village I saw in one of the countries. एक कोई देशों में मैंने एक गांव को देखा, And it came to my news. I saw that news. One of the villages in certain countries. किसी देश में एक कोई गांव था और ये मेरे न्यूज में आया। There is so much poverty वहां पे इतनी गरीबी है that the people there, they started selling their one kidney. और लोग वहां पे अपने खुद की किडनियां बेचने लगे। It's called one kidney village उसे एक किडनी का गांव कहते हैं, because they don't have money for food. क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, They don't have money for other expenses, medical expenses, no money. और उनके पास दवाई के खर्चों के लिए और किसी अलग खर्चों के लिए पैसे ही नहीं है। So to survive, तो वो जीने के लिए they are selling their organs, not one or two. Majority of the people in the villages are selling their organs so they'll get money to survive. और एक दो लोग ने उनके गांव में बहुत सारे लोग अपने अंगों को बेच रहे हैं ताकि उनको थोड़े बहुत पैसे मिले और इसको खा पाए। This message will go all over. और ये संदेश जो है वो पूरे जगत में जाएगा। We have a daddy. हमारा एक पिता है, He is very rich. और वो बहुत धनवान है, He has lot of resources. और उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, His resources will never exhaust. और उसके संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे, His resources will never be depleted. और उसके जो संसाधन है कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते। धरती में क्या होता है? In the world, supply is less, demand is more. और संसार में क्या है ना कि आपूर्ति बहुत कम है और मांग बहुत ज्यादा है। इसको ध्यान से सुनिए। In the world today, in the earth, on the earth, the supply is very less, the demand is very high, so prices are high. और आज दुनिया में जो आपूर्ति है वो बहुत कम है और जो मांग है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा है। But in the kingdom, it's उल्टा. पर जो परमेश्वर के राज्य में चीजें उल्टी है। Supply is unlimited. आपूर्ति खत्म ही नहीं हो सकती। There is no limit. कोई भी सीमा नहीं है। मैंने आपसे कहा जब यीशु मसीह ने पतरस के नाव को भरा
पतरस और उसके साथी के नाव को भी भर दिया। 2 नाव को क्यों भरा? क्योंकि 2 ही थे, अगर 10 होते तो 10 भर जाते हैं। प्रेज गॉड। तो इन द किंगडम द डिमांड इज द इशू, नॉट द सप्लाई। तो राज्य में मांग समस्या है, आपूर्ति नहीं। देयर इज सो मच सप्लाई और वहां पे बहुत सारी आपूर्ति देयर है इज सो मच अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस और हम सबके लिए इतना चीजें उपलब्ध है। So it depends greatly on your mindset, तो वो काफी हद तक हमारी मानसिकता पर निर्भर करता your है। ability to see things from your mind. आपकी क्षमता कि आप मन से कैसे चीजों को देख सकते हैं। Enjoying the Father's resources depends greatly on your mindset. पिता के संसाधनों का आनंद लेना काफी हद तक आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। That means the level of Father's resources you enjoy in life depends on how trained or how developed your mindset is. और जिस हद तक आप पिता के संसाधनों को उनका आनंद लेंगे वो इस पर निर्भर करता है कि आपका मन कितना प्रशिक्षित है और कितना विकसित है। You know, no matter how much is available, भले कितना भी उपलब्ध क्यों ना हो, your mindset determines how much you will have. आपकी मानसिकता निर्धारित करेगी कि आपके पास कितना होगा। For example, you can have a slave mentality. उदाहरण के तौर पर आपकी गुलाम वाली मानसिकता हो And if सकती you है। have slave mentality, even though it's available, you can't enjoy it. और अगर आपकी गुलामों की मानसिकता है, आप चाहकर भी आप उनका आनंद नहीं उठा सकते। So unless we work on our mindset, these things are far, far away from us. तो जब तक हम अपनी मानसिकताओं पर काम नहीं करेंगे तो ये चीजें हमसे बहुत कोसों दूर है। And mindset changes by teaching. और मानसिकता शिक्षाओं के द्वारा बदलती है। Like some people, they teach on poverty. कोई लोग गरीबी के ऊपर पढ़ाते हैं That poverty is God's will. कि गरीबी परमेश्वर की इच्छा है। God wants you to be poor. परमेश्वर चाहता है कि आप गरीब रहे। So because their mindset is like that, they will never prosper. क्योंकि उनका मानसिकता ऐसा है तो कभी समृद्ध नहीं होंगे। That's why right teachings are extremely important. इसलिए सही शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। Someone said Lazarus was poor, किसी ने कहा लाजरस गरीब था, but the Bible says Lazarus took those things for himself. It didn't say God made him poor. It says Lazarus took those. He chose those things for himself. और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने उसे गरीब नहीं बनाया, लाजरस खुद ने उन चीजों को अपने लिए चुना। लाजरस ने खुद अपने आप को वहां पे रखा। It's his choice. वो उसका चुनाव था। It's your choice. ये आपका चुनाव है। I don't choose poverty. मैं गरीबी को नहीं चुनता। I don't like poverty. मुझे गरीबी पसंद नहीं। उसमें कोई नम्रता नहीं है। I detest poverty. मुझे नफरत है गरीबी से। So enjoying the Father's resources depends greatly on your mindset. पिता के संसाधनों का आनंद लेना काफी हद तक आपके मानसिकता पर निर्भर करता So है। I tell all the pastors wherever we go for ministry, I tell them, you know, in one day you will not prosper. Go to the school of prosperity, listen to the messages again and again and again and again till you get it here, till your mindset begins to change, and then you will see resources are coming from all directions. तो हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम पासवानों से मिलते हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि आप एक दिन में समृद्ध नहीं होंगे। आप स्कूल ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जाइए, आप वहां पे शिक्षाओं को लीजिए, उसे सुनिए सुनिए सुनिए, और आपकी मानसिकता जैसे बदलेगी आप देखेंगे कि संसाधन आपकी ओर बह कर आ रहे हैं। This is not a lottery ticket. ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। It's a process. ये एक प्रतिक्रिया है। And the more you work on your mindset. तो और जितना आप अपने मन पर काम करेंगे, For example, उदाहरण के तौर पर someone said they had lot of issues financially in their family. किसी ने कहा कि उनके परिवार में बहुत समस्याएं थी आर्थिक चीजों को लेकर, And they've seen financial struggles, lot of financial struggles while they were growing up. और वो जब उम्र में बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने परिवार में बहुत सारे आर्थिक संघर्षों को भी देखा। They were believers. और ये विश्वासी थे, They used to pray. वो प्रार्थना करते थे, They used to go to church. कलीसिया जाते थे, Tithe भी देते थे. दशमांश भी देते थे, But financial struggle, they never came out of it. पर आर्थिक संघर्ष तो कभी बाहर नहीं आए। तो उनके मन में बैठ गया कि प्रभु सब कुछ कर सकता है केवल पैसे को छोड़कर। It just बैठ गया मन में, because they saw क्योंकि उन्होंने देखा we go to church,
हम कलीसिया जा रहे We हैं, give tithe also. हम दशमांश भी दे रहे We are हैं, still struggling. हम फिर भी संघर्ष कर रहे We have हैं, no money. हमारे पास पैसा नहीं है। And so over the period of time, their mindset became poverty mindset. और जैसा समय बीतता गया तो उनका मन जो है वो गरीबी की मानसिकता से दुरुस्त हो गया। And it will not change. Even if that brother gets 1 crore rupees, it's just a matter of time. All the money will be vapor. In vapor, it will go away. और ये समय की बात है कि अगर वो भाई को 1 करोड़ भी मिला तो वो भाप के नाए वो उड़ जाएगा। So that mindset can only be rectified by teaching. तो वो जो मानसिकता है वो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही ठीक की जा सकती And है। prosperity teaching. और समृद्धि की शिक्षा है। It is when the teaching of prosperity that you listen and you listen and you listen and you listen again and then you listen again and again and again and again. That's when you begin to develop a prosperous mind. That's when you begin to prosper. और जब आप समृद्धि की शिक्षा को लेते हैं, आप उसे सुनते हैं, आप सुनते हैं, आप सुनते हैं, आप दोबारा सुनते हैं और आपका मन मानसिकता से भर जाता है। Yeah. If your mind is prosperous, और अगर आपका मन जो है वो समृद्धि से भरा है और समृद्ध है, God can place you in a desert and you won't lack. परमेश्वर आपको एक रेगिस्तान में रख सकता है और आप वहां पे आपको कभी कमी घटी नहीं होगी। If your mind is not prosperous, अगर आपका मन समृद्ध नहीं है, you will tell God, don't send me to the desert. और आप परमेश्वर से कहें कि मुझे आप कृपया रेगिस्तान में मत भेजिए। Because your prosperity is somehow you're thinking it's connected to a location. क्योंकि आप सोचते हैं कि आपकी समृद्धि जो है वो काफी हद तक किसी जगह से जुड़ी है। No, it's connected to the Lord. नहीं, वो परमेश्वर पिता से जुड़ी है। So it depends greatly on your mindset. तो वो आपके मानसिकता पर बहुत हद तक निर्भर करता है। If God can speak to the wise men for Jesus, He can speak to some other people for you. अगर परमेश्वर यीशु के लिए उन ज्योतिषों से बात कर सकता है तो वो आपके लिए भी किसी से बात कर सकता है। किसी ने कहा वो तो परमेश्वर का बेटा है, तो आप कौन हैं? हम भी परमेश्वर के बेटे हैं। हम भी, यीशु भी अब्बा बोलता, हम भी अब्बा बोल रहे हैं, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो अगर पिता ने यीशु के लिए बुद्धिमान पुरुषों से बातें किया, तो पिता हमारे लिए भी किसी ना किसी से बातें कर रहा है। आमीन। Living by the Father's resources. पिता के संसाधनों के अनुसार जीना। Enjoying the Father's resources depends greatly on your mindset. पिता के संसाधनों का आनंद लेना काफी हद तक आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। How do I change my mindset? मैं अपनी मानसिकता को कैसे बदलूं? Okay, 3 John 1:2. तीसरा यूहन्ना 1:2। Very important message. बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। Just give yourself to the teaching. Slowly, your mindset will change. आप अपने आप को शिक्षाओं को दे दीजिए और धीरे धीरे आपकी मानसिकता बदल जाएगी। See what it says. देखिए क्या कहता है। Beloved, I wish, or in other words, I pray that you prosper in all things and be in health, even as your soul prospers. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे आत्मिक समृद्ध हो रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। There are हिंदी में I want to show you something. I have already showed you, but I want to show you again. 2 शब्द यहाँ पर हिंदी में, उसको ध्यान से देखिए। जैसे और वैसे, मतलब जैसा ये वैसा आपके साथ दूसरा होगा। ओके, उसमें लिखा है जैसे तू आत्मिक नहीं, सोल होना चाहिए, मानसिक। जैसे तू मानसिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही जितना तू मानसिक उन्नति कर रहा है उतना ही तू सब बातों में उन्नति करेगा और भला चंगा रहेगा। That means your prosperity in all area of your life depends on how prosperous your soul is. इसका अर्थ है कि आपके जीवन में समृद्धि वो इस बात पर निर्भर है कि आपका मानसिकता कितनी समृद्ध है। So it's not just about money, because if your soul is prosperous only 20%, no matter how much money you get, you come back to that 20%. तो सवाल पैसों का नहीं है। अगर आपका मन से 20% समृद्ध है तो भले आपको कितना भी पैसा मिले, वो घूम फिर कर 20% पे ही आएगा। He said, as
जैसे वैसे जितना उतना जैसे आपका मन समृद्ध होगा उतना ही और वैसे ही और उतने ही मात्रा में आप सब बातों में उन्नति करेंगे. So I started working on my mind. तो मैं अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया. I began to change my thinking through the teachings. तो मैंने अपनी मानसिकताओं को शिक्षाओं के द्वारा बदलना शुरू किया. Day and night. दिन और रात. When people are wasting their time on social media, I was in the word day and night. लोग अपना समय को सोशल मीडिया में व्यर्थ कर रहे थे पर मैं दिन रात वचन में था. In the train, I was in the word. मैं ट्रेन में वचन सुनता था. In the plane, I was in the word. मैं प्लेन में वचन को सुनता था. At night, I was in the word. मैं रात में वचन को सुनता था. And it didn't change quickly, but it began to change, and I began to see myself as a prosperous man. और वो जल्द से तो बदला नहीं पर वो धीरे धीरे बदला और मैं अपने आप को समृद्ध व्यक्ति कितना ही देखने लगा. Now, I told you I was stuck in Dimapur for some corona reasons. और मैंने आपसे कहा था कि कोरोना के समय में हम दीमापुर में अटके थे. Even in that place for 3 months. उस जगह में भी 3 महीनों के लिए I'm not going out. मैं बाहर नहीं जा रहा. Nobody's coming in. कोई अंदर नहीं आ रहा. But money just flowed like a river to me. पर पैसा मानो एक नदी की तरह मेरी ओर बहकर आया. How could it happen? कैसे हो सकता है ये? Who is bringing the money? कौन ला रहा है पैसा? Are you contacting somebody? क्या आप किसी को फोन कर रहे हैं? How can it be so simple? कितना वो ये कैसा इतना आसान हो सकता है? It's the Father. ये पिता है. And He gave us a key. और उसने हमें कुंजी दी. Work on your mindset. अपने मन पर अपनी मानसिकता पर काम करो. It doesn't matter how long you've been a believer. इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने समय से विश्वासी है. He says work on your mindset. वो कहता है कि अपनी मानसिकताओं पर काम करो. Think like a son. एक बेटे की तरह सोचो. Think like a king. एक राजा की तरह सोचो. Think like an owner. एक मालिक की तरह सोचो. Think like a king. एक राजा की तरह सोचो. He said, as your soul begins to prosper, your prosperity in all areas will go up. कोई बोल रहा है मैं समृद्ध क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं समृद्ध क्यों नहीं हो रहा? आपके मन के ऊपर है. It's because of your mind. आपकी मन की वजह से है. क्योंकि आपका मन समृद्ध नहीं हो रहा. Praise God. He says, as your soul prospers, you will prosper in all things. वो कहता है जैसे तेरी मानसिकता समृद्ध होगी वैसे तो हर बात में समृद्ध होगा. किसी ने कहा मेरा समृद्धि उस ब्रदर ने रोक के रखा है. कोई आपकी समृद्धि को रोक नहीं सकता. मेरे समृद्धि को इसने रोक के रखा है. कोई आपके समृद्धि को रोक नहीं सकता. आपकी समृद्धि को आपके मन ने रोका है. और अगर आप वचन लेकर के, वचन को पानी कहा जाता है, वचन को आईना कहा जाता है, वचन को पानी कहा जाता है. अगर वचन के आईने में अगर आप देखें, वचन का पानी लेकर के अगर आप अपने मन को धोते रहें, आपका मन समृद्ध होगा. और जितनी मात्रा में आपका मन समृद्ध होगा उतनी ही मात्रा में आप सारे समृद्धि का अनुभव करेंगे. फिर आप कौन हैं, कितने साल से कलीसिया में हैं, क्या आपका नाम है, नॉट इवन अ फैक्टर. और ये इससे फर्क भी नहीं पड़ता. What my name is, मेरा नाम क्या है, what my title is. मेरा पद क्या है. A lot of pastors are struggling financially. बहुत सारे पासवान भी आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहे हैं. Because these things, it doesn't matter what your title is, whether you're a bishop or a pastor, don't matter. What matters is how prosperous your soul is. कि इन चीजों में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका पद क्या है, पासवान या बिशप हो, पर इस बात पर फर्क पड़ता है कि क्या आपका मन मानसिक है या नहीं. So I really took it seriously. तो मैंने इन चीजों को बहुत गंभीर रूप से लिया. And even if you are a young person here today, और अगर आप यहाँ आज एक जवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, don't think that prosperity only comes after 18. आप ये मत सोचिए कि 18 वर्ष के बाद ही समृद्धि आएगी. ड्राइवर लाइसेंस 18 के बाद prosperity कभी भी आ सकता है. Praise God. If your mind is prosperous, no age is not the limit. और अगर आपका मन समृद्ध है तो उम्र से फर्क नहीं पड़ता. Okay, let's see Galatians 4:1. गलातियों 4 का 1 देखेंगे. Now I say that the heir, as long as he is a child, differs nothing from a servant, though he be Lord of all. मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो सब वस्तु का स्वामी क्यों ना हो, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं. How beautiful. कितना सुंदर है ये वचन. अगर आप आर्थिक संघर्ष में हैं,
या मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि प्रार्थनाएं बिगड़ सकती हैं जब लोग बिल के लिए बुलाते हैं। जब कुछ भरना हो आपको और वो फ़ोन कर रहे हैं आपको, प्रेज गॉड, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। प्रेज गॉड, वचन पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा मूड था, फिर आ गया कोई, हाँ, उत्पत्ति पूरा पढ़ने का सोचा था आपने, फिर आ गया फ़ोन, उत्पत्ति भी गया। सो डोंट टेक प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस लाइटली। तो कृपया करके आप समृद्धि की शिक्षाओं को हल्के में ना लें। These are very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। And when I look at that one village where people are selling their organs, I think how important this message is for the world. और मैं जब देखता हूँ कि उस गांव के बारे में जो अपने किडनियों को बेचते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये वचन कितना जरूरी है उन चीजों के लिए। The heir means owner, one who owns everything. और वारिस का अर्थ है मालिक, जो सब चीजों का मालिक है। As long as he is a child. जब तक वो बालक है। Is it talking about age? क्या ये उम्र के बारे में बात कर रहा है? No, it's talking about mindset. नहीं, वो मानसिकता के बारे में बात कर रहा है। As long as he is childish in his thinking, he is no different from a slave, though he owns everything. जब तक वो अपनी मानसिकता में, अपनी सोच में एक बच्चा है, यद्यपि उस सब वस्तु का स्वामी क्यों ना हो, तो भी उसमें और दास में कुछ फर्क नहीं है। Here is Lazarus begging for a roti, and the one whom he believes in, Jesus Christ, he is employing people to work with him by faith. What a difference. और यहाँ पे लाजरस है जो गरीब है, और यहाँ पे यीशु है जो लोगों को कर्मचारियों के तौर पर रख रहा है और उनकी देखभाल भी कर रहा है। For a roti he is begging. एक रोटी के लिए वो लाजरस भीख मांग रहा है। And here is Jesus our Lord multiplying the roti. What a difference. और यहाँ पे यीशु मसीह हमारा प्रभु वो रोटियों को बहुगुणित कर रहा है, और क्या कितना फर्क है देखिए आप। As long as an heir is childish in his thinking, even though he has everything, he will enjoy nothing because his mind has kept him a slave. भले ही एक वारिस, सब कुछ उसका है मसीह में, सारी आत्मिक आशीषें उसको दी गई हैं, सब कुछ लेकर वो घूम रहा है, क्योंकि अपने मन में वो बच्चा है, उसके मन ने उसको गुलाम बना दिया है, और वो गुलामी के कारण वो कुछ भी चीज का आनंद नहीं उठा पा रहा है जो पिता ने उसे दिया है। He enjoys nothing. और वो किसी चीज का आनंद नहीं उठा सकता। Everything belongs to him, but he enjoys nothing. सब कुछ उसका है, पर वो किसी चीज का आनंद नहीं उठा सकता। He said he is Lord of all. वो कहता है सब चीजों का स्वामी है। He is Lord of all. वो सब चीजों का स्वामी है। All the blessings are his. सारी आशीषें उसकी है। He is so rich. वो इतना धनवान है, लेकिन बोलते हैं फिर भी गुलाम है। वो फिर भी गुलाम है। Why is a गुलाम? क्यों वो गुलाम है? Because of his mind. उसके मानसिकता की वजह से। And mindsets don't change in one night. और मानसिकता एक रातों रात में नहीं बदलती। Mindset takes a lot of time in teachings. मानसिकताओं को बदलने में बहुत समय लगता है, शिक्षाएं लगती है। It takes a wrestling with teachings. और वो मानो पहलवानी करना होता है आपको शिक्षाओं के साथ। शिक्षाओं के साथ कुश्ती है, ये अच्छा कुश्ती है, you know. You take the teaching and you are wrestling with that teaching till the teachings become a part of you. जब तक तब तक एक शिक्षा आपका भाग नहीं हो जाती। No one can prosper unless they sit on the teachings. It's impossible. कोई भी शिक्षाओं पर बैठे बगैर समृद्ध नहीं हो सकता, वो असंभव है ये। Romans 8:7. रोमियो 8:7। देखिए क्यों असंभव है। Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। Now look at this very carefully. तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। He said the carnal mind is enmity against God. वो कह रहा है कि सांसारिक मानसिकता परमेश्वर का बैरी है। He said if you don't work on your mind, you're going to oppose God's resources. अगर आप अपने मन पर काम नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर की योजनाओं का विरोध करेंगे। Say you're born again.
मानिए कि कहिए कि आपका नया जन्म हुआ है but your mind is carnal, your mind is worldly, और आपका जो मन है वो सांसारिक है और वो शरीर पर है। and now you have to work on your mind. अभी आपको आपके मन पर काम करना But है। let's say you don't work on your mind. और कहिए कि आप अपने मन पर काम नहीं करते, You are not washing your mind with God's word. आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं धो रहे हैं, So your mind is carnal. तो आपका मन सांसारिक है। Carnal mind is enmity against God. और एक सांसारिक मन जो है परमेश्वर का बैरी है। सोचिए, a carnal mind, a believer with a carnal mind is in enmity against God. एक विश्वासी जिसका सांसारिक मानसिकता है वो परमेश्वर का बैरी है। It is not subject to the law of God. It cannot receive anything from God. क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है तो परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, Because it is in opposition against God. क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा है, It is opposing God. वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। So I say to you, work on your mindset. तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने मन पर काम करिए। And let's say you work on your mindset. और ऐसा कहते हैं कि आपने अपनी मानसिकता पर काम किया And now your mind is ready to receive. अभी आपका मन प्राप्त करने के लिए तैयार है। But let's say you don't work on your mindset. आप कहिए कि आप अपने मन पर काम नहीं करते, Then your mind is carnal. तो आपका मन सांसारिक है। So परमेश्वर 3 लोगों को भेजे, 15 लोगों को भेजे, कितनों को भी भेजे, परमेश्वर जो आपको देने का कोशिश कर रहा है आप उसे ले नहीं पाएंगे, क्योंकि एक शारीरिक मन परमेश्वर से क्या करता है, बैर करता है। मतलब परमेश्वर से दुश्मनी है, वो जो भी करने का मन करेगा आप करने नहीं देंगे, क्योंकि मन शारीरिक है। Praise God. You know, Jesus said to Mary and Martha, remove the stone. यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा था कि उस पत्थर को हटाओ। आपको पता है मार्था ने क्या कहा, प्रभु बदबू आएगा। Because of her nose, she was about to stop a miracle. क्योंकि उसके नाक की वजह से वो एक चमत्कार को रोकने वाली थी। मतलब आप करने नहीं देंगे। He wants to resurrect your finances. He wants to take away the stone. He wants to resurrect your finances. But because we are carnal, you will not allow him to do it. वो पत्थर हटाकर हमारे आर्थिक चीजों को उनका पुनरुत्थान करना चाहता है, पर हमारी नाक की वजह से, हमारे शारीरिक मन की वजह से हम उसे करने नहीं देते। And who is this Martha? और ये मार्था कौन है? ये वही है जब यीशु वचन पढ़ा रहा था वो बहुत व्यस्त थी सेवा में। आप देखेंगे जो लोग वचन को रोकते हैं और जो लोग परमेश्वर को काम करने से रोकते हैं, ये वही लोग हैं जिनको वचन के लिए टाइम नहीं है। बिकॉज एक शारीरिक मन, एक सांसारिक मन परमेश्वर से बैर करता है। जो भी परमेश्वर करना चाहता है वो उनको रोकेंगे, दे विल स्टॉप इट। बट कॉन्ट्ररी, when your mind is spiritual, पर उसके विरुद्ध में अगर आपका मन जो है वो शायद वो आत्मिक है, your prosperity, brothers and sisters, your prosperity is not dependent on a location. भाई और बहनों, आपकी समृद्धि किसी जगह से नहीं जुड़ी। Your prosperity is not dependent on government schemes. आपकी समृद्धि जो है वो सरकार के स्कीमों के ऊपर नहीं निर्भर है। जैसे किसने कहा मैं गरीब हूं गवर्नमेंट की वजह से। Your prosperity is not dependent on who is in power or what schemes they have. आपकी समृद्धि इस पर निर्भर नहीं कि शासन में कौन है और क्या स्कीमों को ला रहे हैं। Your prosperity is dependent on your mind. आपकी समृद्धि आपके मानसिकता पर निर्भर है। I got it. मुझे वो मिल गया। And I said, Lord, रात दिन मैं अपने मन में काम करूंगा। I came out of Facebook. मैं फेसबुक से बाहर आया। I came out of Instagram. मैं इंस्टाग्राम से बाहर आया। I came out of all of those time killing apps. मैं उन जो भी समय खाने वाले ऐप्स हैं उन सबसे बाहर आया। And I said I'll work on my mind. और मैंने कहा कि मैं अपने मन पर काम करूंगा। And brothers and sisters, through these teachings, और भाइयों बहनों, इन शिक्षाओं के द्वारा there are prosperity giants that are being raised up. समृद्धि के दानव है जो बढ़ाए जा रहे हैं। योद्धा, दानव क्या? योद्धा। वो नेगेटिव साइड में हो गया दानव। तो हम राक्षसों को नहीं कर रहे हैं, हम योद्धा को। So through prosperity, through these teachings, इन शिक्षाओं के द्वारा जो आपको हर रविवार को मिल रहा है,
through this teaching, prosperity giants are rising up. और इन शिक्षाओं के द्वारा समृद्धि के योद्धा बढ़ रहे हैं। And one thing unique about them, और उनके बारे में एक चीज अनोखी है, वो ना तो प्रावधान के पीछे भाग रहे हैं, ना पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो समृद्धि में उड़ रहे हैं। Praise God. These are the prosperity giants. और ये वो समृद्धि के योद्धा है। Okay, finally, Romans 12. See, that's why you got to renew your mind. देखिए इसीलिए आपको अपने मन को नया करना है। रोमियो 12 का 2। And do not be conformed to this world, और इस संसार के सदृश न बनो, but be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। He said, change your thinking, your life will change. वो कहते हैं क्या अपने सोचने को बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। Let me make a bold statement. मैं एक बहुत हियाव वाक्य रचना बता रहा हूँ आपको। It's not a higher salary that you need. आपको एक उत्तम तनख्वाह नहीं की जरूरत नहीं है। No, it's not. नहीं, आपको नहीं है। It's not a bonus that's what you need. It's not a bonus that's what you need. आपको एक बोनस की जरूरत नहीं है। It's not a higher salary what you're looking for. और आपको एक उच्च दर्जे की तनख्वाह की भी जरूरत नहीं है। What you actually need आपको इस चीज की जरूरत है is to change what you think. कि आप क्या सोच रहे हैं, आप उसे बदले। Sometimes we ask God for all these things, कई बार हम परमेश्वर को बहुत सारी चीजों की मांग करते हैं, which is a byproduct of changing your mindset. जो आपके मन का बदलने का उत्पादन है। He says, your life will change when your thinking changes. वो कहता है कि आपका जीवन तब बदलेगा जब आपकी मानसिकता, आपका सोच बदलेगा। Your prosperity, your finances will be transformed when your mind thinking changes. आपकी समृद्धि, आपके विधि तब बदलेंगे जब आपकी मानसिकता बदलेगी। Praise God. Your life, your finances, your health will change when your mindset, your thinking changes. आपका जीवन, आपका सेहत, आपकी आर्थिक चीजें तब बदलेंगी जब आपका मानसिकता, आपका सोचने का तरीका बदलेगा। So finally, as we close, तो ऐसे हम खत्म कर रहे हैं। how do I change my मैं mindset? अपने मानसिकता को कैसे बदलूं? Listen to the teachings. शिक्षाओं को सुनिए, Listen to it. उसे सुनिए। What you need is not a salary increase. It will come. You change your mind, you can be in any corner of the world, salary increase is coming to you. और आप सुनिए, आपको तनख्वाह में उन्नति की जरूरत नहीं है, वो आएंगे। आप भले इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको वो तनख्वाह बढ़कर मिलेगी। You take the teachings, आप शिक्षाओं को लीजिए, especially the prosperity teaching, खासकर समृद्धि की शिक्षाओं को लीजिए and you hear it. और सुनिए, Hear it, सुनिए, hear it, सुनिए, and then hear it, और फिर सुनिए, and then hear it again, और फिर दोबारा सुनिए, and then again hear it, make good notes, और फिर दोबारा सुनिए, अच्छे नोट्स को बनाइए, and then make good notes, और फिर अच्छे नोट्स को बनाइए, and then hear it, और फिर सुनिए, and then make good notes, और फिर आप नोट्स को बनाइए, and then hear it again. और फिर सुनिए। Over a period of time, और समय सा जाता रहेगा वैसे your mindset will change. आपकी मानसिकता बदल जाएगी। And when your mindset changes, to the level of the change will be the level of your prosperity. और जैसे आपका मन बदलेगा, जितना आपका मन बदलेगा उतना ही आपकी समृद्धि भी बदलेगी, Because the Father has it. क्योंकि पिता के पास है। आपके पास कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो या कुछ भी हो, आप अपने बच्चे को सब कुछ नहीं देंगे जब तक बच्चा समझदार नहीं होता। If you can do it, don't you think our heavenly Father will do it? आप नहीं कर सकते तो क्या आपको लगता है हमारा स्वर्गीय पिता करेगा? आपके पास एक बुलेट है, बुलेट बाइक है शायद, और आपका बच्चा जन्म हुआ है, सीधा बुलेट में बिठा देंगे आप उसे? It's a harmful for the baby and harmful for you. और वो आपकी और आपके बच्चे के लिए हानिकारक है। So the Father has lot of resources, तो पिता के पास बहुत सारे संसाधन हैं, including your house, आपका घर को लेकर भी, including your debt freedom, उसमें आपका कर्ज मुक्ति भी आता है, including whatever it is. He has everything prepared for you. He just waits for us to develop our thinking. और सब जिसकी आपको जरूरत है वो सब उसमें है, और पर वो इस चीज का राह देखता है कि हाँ हम अपने सोच को कब बदले। He cannot prosper a carnal mind because a carnal mind goes against God, so he can't prosper. He has to wait
till a believer stops being worldly and becomes spiritual. When he becomes spiritual, the resources flow. और वो कभी भी एक शारीरिक मन को कभी उसे समृद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक मन हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध होता है। पर जब आपका मन आत्मिक है, जब आपकी आत्मा आत्मिक है, तो वो आपको समृद्ध कर सकता है। There is so much available. और आपके लिए कितना कुछ उपलब्ध है। God wants every child to live by his resources. परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक संतान उसके संसाधनों के अनुसार जिए। Just like little children live by their papa's resources. जैसे छोटे बच्चे अपने पापा के संसाधन के अनुसार जीते हैं, For us, we live by our dad's resources. वैसे हमारे लिए हम भी अपने पिता के संसाधन के अनुसार जीते हैं। Lord, what do you want? पिता आपको क्या चाहिए? I live by your resources. मैं आपके संसाधनों के अनुसार जीता हूँ। He will release those resources to you. और वो संसाधन वो आपकी ओर रिहा कर देगा। As we change and work on our mindset, जैसे हम बदलेंगे और अपने मन पर काम करेंगे, you can pray for prosperity with 40-day fasting. आप समृद्धि के लिए 40 दिन प्रार्थना कर सकते हो उपवास के साथ। It will not help you. और वो आपकी मदद नहीं करेगा। It works by changing mindset. वो तभी काम करता है जब आप अपने मन को बदलते हैं। You take the teaching आप शिक्षाओं को लेते हैं and let that water come on your mind. और आप उस पानी को अपने मन पर बहने देते हैं। जो अपने परिवार में जो आर्थिक संघर्ष देखा, वो वचन का पानी उसे धो दी। जो आपने अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में या फिर मूवीज में देखा, जो मानसिकता बनी है, वचन का पानी उसको धीरे धीरे उसको धो दें और राजकीय मानसिकता आपके मन के अंदर विकसित हो। Let kingdom mentality develop in you. और आपके मनों में राजकीय मानसिकता विकसित हो। And it takes time. उसमें समय लगता है। It takes time. उसमें समय लगता है। It takes lot of time. उसमें बहुत समय लगता But है। once you have it, पर अगर आपके पास एक बार है, I'm telling you, no matter where you are in the world, मैं कह रहा हूँ कि भले आप कहीं भी क्यों ना हो इस दुनिया में, resources will come to you from all four directions to do what God has called you to do. और संसाधन जो है वो चारों दिशाओं से आपकी ओर आएंगे और आप वो करेंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। We have never lacked, हमें कमी नहीं हुई and we don't pursue people. और हम लोगों के अनुसरण भी नहीं करते We have never lacked. और हमने कमी घटी को नहीं देखा। In these many years of ministry, we have never lacked. और इन सेवकाई के इतने सालों में हमने कभी कमी घटी को नहीं देखा। We have never lacked. हमें कभी घटी को नहीं देखा And we will never lack. और हम कभी कमी घटी को देखेंगे भी नहीं, Because कुंजी मिल गया, we got the key. हमें उसको कुंजी मिल गई। Key is not about a donor. और जो कुंजी है वो किसी दान देने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करती। देखिए, लाजरस का पूरा ध्यान एक डोनर पर था। उसके टेबल से कुछ गिरेगा तो मेरे पॉकेट में गिरेगा, उसका ध्यान टेबल पर था। लाजरस फोकस इज ऑन अ डोनर। और लाजरस का पूरा ध्यान उस देने वाले पर था। द इश्यू इज नॉट अबाउट अ डोनर। और समस्या देने वाले की नहीं है। द इश्यू इज नॉट अबाउट अ डोनेशन। और समस्या दान की भी नहीं है। द इश्यू इज अबाउट योर माइंड। समस्या आपके मन की है। सो वी टुक दैट सो सीरियसली एंड वी बिगन टू वर्क ऑन आवर माइंड। और हमने वो इतना गंभीर रूप से लिया और हमने अपने मनों पर काम करना शुरू कर दिया। वर्किंग ऑन आवर माइंड। और हमने अपने मन पर काम करना शुरू किया। और जैसे हमारा मन समृद्ध हुआ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे हमारा मन समृद्ध हुआ 10% से 15%, 20%, 40%, 50%, जैसे जैसे मन समृद्ध हुआ वैसे वैसे चारों दिशाओं से समृद्धि, 50% समृद्धि आने लगा। Praise God. That's how it works. और ऐसे वो काम करता है। Amen. Amen. So I want to encourage you that we must live by our Father's resources. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सबको पिता के संसाधनों के अनुसार जीना है। Don't be so bothered by having your own resources that you never enjoy Father's resources. आप अपने संसाधनों को कमाने में इतने चिंतित ना रहे कि हम पिता के संसाधनों का आनंद लेना भूल जाए। You were never called to live by your own resources. आपको कभी भी आपके खुद के संसाधनों के अनुसार जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया गया था। It's frustrating. और वो बहुत निराशाजनक है। We have little, हमारे पास थोड़ा है, उसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं,
Okay? It's very frustrating to live by our own resources. और ये बहुत निराशाजनक है कि अगर हम अपने खुद के संसाधनों के अनुसार जिए, Especially when we have a father, let's live by his और resources. खासकर अगर हमारा एक पिता है तो हम उसके संसाधनों के अनुसार जीवन जिए। Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we've heard today. पिता धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना। Open our hearts to this revelation that our Father is rich. हमारा मन इस प्रकाशनों के ऊपर खोल दीजिए कि हमारा पिता धनवान है, That wherever we are, कि जहाँ कहीं भी हम हैं, in a company, एक कंपनी में क्यों ना हो, in business, व्यापार में क्यों ना हो, studying, शिक्षा क्यों ना हो, or doing ministry, सेवा क्यों ना हो, help us be conscious that we have a Father and we live by his resources. हमारी मदद कर कि हम इस बात के बारे में जागरूक हो और कि हमारा एक पिता है और हम उसके संसाधनों के अनुसार काम करते हैं। So that whatever we do for you. तो जो कुछ भी हम करते हैं हम वो आपके लिए करते हैं। We will not abuse or manipulate people. हम कभी भी लोगों का छल कपट और उनका फायदा नहीं उठाएंगे। Those who live for resources manipulate people. जो लोग संसाधनों के जीते हैं वो लोगों को साथ चालाकी करते हैं। They take advantage of the innocent. वो मासूमों का उनका फायदा उठाते हैं। But we live for our Father. पर हम अपने पिता के लिए जीते हैं। We live by his resources. हम उसके संसाधनों के अनुसार जीते His हैं। resources are many. उसका संसाधन बहुत है। We live by his resources. हम उसके संसाधनों के अनुसार जीवन जीते हैं। Thank you for today's word, Lord. आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। Let this become a reality in our lives. और ये चीजें हमारे जीवन में वास्तविक हो। We give you all the glory, हम सारी महिमा आपको देते हैं। honor and praise स्तुति और आदर in Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन।